Okay, fine. So we are going to start exercise 3.2. Here we'll learn addition of two matrices, multiplication of two matrices, then multiplication of a matrix with a scalar, okay, subtraction of two matrices. So all the operation of matrices we'll learn here, right? Acha, division of two matrices not possible, right? So here division will not learn. Okay. So one by one I am explaining. Number one, addition of two matrices. Okay, first of all we have to understand when we can add two matrices. Okay, let A equals to Aij and B equals to Bij be two matrices, right? If order of A equals to order of B, then A plus B or A minus B exist, right? So if order of A and B are equal, then we can say that A plus B and A minus B exist. If order are different, then we can't add or subtract. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, मान लो A एक मैट्रिक्स है, B एक मैट्रिक्स है, लेकिन दोनों का ऑर्डर सेम होना है, तभी हम बोल सकते हैं A प्लस बी और A माइनस बी एग्जिस्ट होगा. अदरवाइज A plus B or A minus B does not exist. Exactly. So how we'll add? Suppose we are adding A plus B. Then corresponding element will add Aij plus Bij. अब देखो एडिशन में अगर ऐड करते हैं जो मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर सेम होगा. अगर A का ऑर्डर है m क्रॉस n, B का ऑर्डर है m क्रॉस n, तो A प्लस B का भी ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा. जो A का है जो B का है वही क्या हुआ? A प्लस B का होगा. सो अंडरस्टूड? अच्छा. Yes, sir. One example take. So have you written this? Quickly write. Yes, sir. Okay. Let one example I am taking. A equals to 2, 3, 5, 1, 2, 4. And B equals to 0, 5, 2, 4, 3, 1. Find A plus B and A minus B. ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेम कंडीशन होगा दोनों में. अब देखो A प्लस बी अगर हम ऐड करते हैं दोनों को क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा. जैसे 2 प्लस 0, फिर 3 प्लस 5, फिर 5 प्लस 2, 1 प्लस
4, 2 plus 3, 3, 4 plus 1, 1, तो क्या मिला हमें 2, 8, 5 plus 2 7, 7, 5, 5, 5, 5, 5. 5. This is a plus b, right? Similarly, if you subtract a minus b भी उसी तरीके से, सिर्फ यहाँ पे एडिशन का प्लेस में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, राइट? तो अगर हम माइनस करेंगे तो a माइनस बी क्या आना चाहिए बताओ, हम डायरेक्टली लिख रहे, सो a माइनस बी, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर दो, तो 2 माइनस 2, 0 हाउ मच, 2, 2, 3 माइनस 5 minus हाउ 2, मच, माइनस 2, minus 2, 5 माइनस 2 हाउ मच, 3, 3, 1 minus 4 how much, minus 3, minus 3, 2 minus 3 how much, minus 1, minus 1, 4 minus 1 how much, 3. 3. So this is a minus b. So understood addition and Yes, sir. subtraction? This is first operations. Have you written? Just a Simultaneously second. write down also. So I'll share this video, then also you can write your choice. Okay, I'll Okay, sir. upload and then I'll say share the link. So Okay, now next, second operation, multiplication of a matrix with a स्केलर, कोई भी रियल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते कोई भी मैट्रिक्स को, तो हाउ विल मल्टीप्लाई, लेट a equals to aij be a matrix. Now k into a if you multiply, so k into aij, ये k क्या करेंगे हम, ऑल एलिमेंट का साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स k into aij, सिंपल, ऑल एलिमेंट का साथ मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी ऑर्डर अनइफेक्टेड रहेगा, जो ऑर्डर ए का है k into a का भी ऑर्डर सेम होगा. एग्जाम्पल, a equals to suppose 2, 3, 4, 1. Find 3a. So 3a equals to 3 into 2, 3, 4, 1. Now if we'll multiply, इसको मल्टीप्लाई अगर करोगे तो क्या करेंगे हम, हर एक एलिमेंट का साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 3 will be multiplied with all the elements, तो कितना होगा, 6, 9, 3 4 जाए 12 and 3 1 जाए 3. So this is 3. So this was the second operation. Have you written? Yes, sir. Okay. Now आ जाओ third operation, multiplication of two matrices, अब देखो यहां पे जैसे हम लोग एडिशन किया था, जैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन लेकिन ऐसा नहीं, राइट? तो मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, लेट a equals to
AIJ M cross N and B equals to BIJ M क्रॉस N और इसको दे देते P क्रॉस Q. ओके, B two matrices, right? Yes, sir. Two matrices, ठीक है. अभी देखो, if column number of first matrix and row number of second matrix are equal, then A into B exists. If N equals to P, then A into B exists. This is the main rule of multiplication. क्या होगा? Column number of first matrix should be equals to row number of second matrix. Second matrix. Okay, then we can say that AB exists. अब multiply करेंगे कैसे? So first write down this. That is the condition for multiplication. So multiplication of two matrices. Sir, I have taken the screenshot. Screenshot you have taken. Okay, fine. And video also I'll share. Don't worry about it. Okay. Yes, sir. Now, how we can multiply? Multiplication. Okay. So let A equals to A11, A12, A13, A21, A22, A23. ठीक है, एक मैट्रिक्स हो गया. और B और एक मैट्रिक्स. अब इसका देखो कॉलम नंबर कितना है बताओ. हाउ मेनी कॉलम नंबर? कॉलम 3 Of A? 3 कॉलम है ना. Yes, sir. तो रो नंबर कितना होना चाहिए B का? 3 होना 3. चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे. सो रो नंबर 3 यहाँ पे सपोज B11, B12, B21, B22 and B31, B32. Now see here, its order of A is 2 cross 3 and order of B is 3 cross 2. So we can multiply A and B. So if we multiply, then how we can multiply? Try to understand. A11, A12, A13, A21, A22, A23. 2, 3. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? B11, B12, B21, B22, B31 and B32. 3, 2. Right? Okay. Now if you multiply, देखो कैसे करोगे? फर्स्ट रो को पहले चूज करो. Take first row and multiply first row with first column. Corresponding element multiply. तो क्या हो जाएगा? A11, B11 और मिडिल उसके बाद प्लस देंगे. फिर A12, B21, A12, B21 B2. प्लस A13, B क्या 31
दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट कॉलम का साथ, फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम का साथ, तो सेकेंड एलिमेंट मिलेगा। तो क्या हो जाएगा A11 फिर B12, ठीक है, फिर प्लस A12 B22 प्लस A13 B32, ये हो गया सेकेंड एलिमेंट। जब मेरा फर्स्ट रो का साथ इसका कॉलम को मल्टीप्लाई करना हो गया, फिर हम कंसीडर करेंगे सेकेंड रो। नाउ कंसीडर सेकेंड रो एंड मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम। कितना होगा A21 B11 प्लस A22 B21 प्लस A23 B32। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम का साथ मल्टीप्लाई, कितना होगा A21 B12 प्लस A22 B32, सॉरी B22 होगा ना, यस सर, B22 एंड प्लस A23 और B32, राइट। तो थर्ड एलिमेंट का लास्ट B31 होना चाहिए। रुको, B21 नहीं सर, सॉरी थर्ड एलिमेंट का A21 लास्ट B12 A22 और ये क्या हो गया B22, ठीक है, प्लस A23 और B32, ठीक है। तो है सर थर्ड एलिमेंट कौन सा, ये वाला, नहीं सर, ये वाला, ये वाला, 1 2 1 ये 2 वाला A21 2 1 A21 का साथ अच्छा B12 को मल्टीप्लाई किया ना, प्लीज करेक्ट। नहीं सर, A21 B11 सही है, फिर A22 B21 सही है, फिर नहीं, A23 B31 होगा। ये वाला क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ओ ठीक ही तो है। और उसके बाद A22 का साथ 2 1, अच्छा हाँ B21, ठीक है, फिर A23 का साथ 3 1 होगा, B31। यहाँ पे B31 होगा, that is the B31, okay। So this is the multiplication between two matrices. Okay, now take one example. Take a screenshot. यस सर, टेकन। अच्छा, ये गलती नहीं करना है। जैसे एडिशन में हम क्या किया, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्शन में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन का रूल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का साथ हम मल्टीप्लाई करके नहीं मिलेगा। हमें क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट रो का साथ मल्टीप्लाई करोगे सारा कॉलम। अगर 2 कॉलम्स है 3 कॉलम्स है तो 3। अच्छा एक बात बताओ, कैन यू मल्टीप्लाई B इंटू A, B इंटू A, B का कितना है, B का ऑर्डर ऑफ B, यस, B का ऑर्डर 3 into 2, 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2 एंड A का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। तो मतलब B क्रॉस A भी पॉसिबल है, बिकॉज दिस टू आर सेम। yes sir, So B into A also exists, but after multiplication order of BA will be 3 cross 3। यहाँ पे जैसे ऑर्डर कितना आया 2 क्रॉस 2, क्योंकि देखो जब मल्टीप्लाई कर रहे तो देखो जो फर्स्ट का जो रो नंबर है और सेकंड का जो कॉलम नंबर है वो हो रहा है ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन का। जैसे ए बी को मल्टीप्लाई किया, ए का ऑर्डर कितना था 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर कितना था 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2, तो ये देखो ये दोनों इक्वल हो गया, राइट। जो मल्टीप्लिकेशन में आया कौन आया 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, मतलब जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन का, इसका रो नंबर और इसका कॉलम नंबर होता है। अब यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बीए का जो ऑर्डर आएगा, अगर हम देखें बीए का ऑर्डर कितना आएगा
3 cross 3 3 cross 3. after multiplication. That means it will be more lengthy if you will find BA. So understood multiplication? Yes, sir. Any confusion? Okay. No, sir. Okay. So we learned addition, subtraction. फिर we learned multiplication of a matrix with a scalar. तो स्केलर का साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं वो स्केलर को हर एक एलिमेंट का साथ मल्टीप्लाई कर देना. We have to multiply that scalar with all the elements of that matrix. And multiplication between two matrices, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दो मैट्रिक्स को, तब हमें क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो को लेना है और सेकेंड मैट्रिक्स का सारा कॉलम का साथ मल्टीप्लाई करेंगे. और मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे और उसका बीच में एडिशन आएगा. राइट. सो ये है मल्टीप्लिकेशन का वे. Now we'll start 3.2. Okay, so start 3.2. Okay, so now see first question. A is given, B is given, C is given. Then find A plus B, A minus B, 3A minus C, AB and B. So 5 things we have to find. So we'll start exercise. Exercise 3.2. So देखो आंसर 1 का फर्स्ट फाइंड A प्लस B. A क्या है देखो, A हो गया 2 4 3 2 और B कितना हो गया 1 3 -2 5. अब हम जानते हैं एडिशन में क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाता है. यस सर. तो बताओ क्या होगा, 2 + 1 3 3, 4 + 3 7 7, 3 + -2 1 1, 2 + 5 7 + 7. तो दैट इज A plus B. दिस इज द फर्स्ट आंसर. अब आ जाओ A minus B. जब हम माइनस करेंगे A कितना है 2 4 3 2. इसको माइनस करना है किससे 1 3 -2 5. सो अभी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करने से क्या आएगा बताओ, 1 1 1, 4 - 3 कितना होगा 1, 3 -2 कितना होगा 5 5 and 2 - 5 3 -3. -3. Okay. Yes sir. एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ एल्जेब्रा. मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को एल्जेब्रा बोला जाता है. ठीक है. Yes sir. हायर क्लासेस में यू विल गेट लीनियर एल्जेब्रा, बुलियन एल्जेब्रा. तो ऑल आर द पार्ट ऑफ एल्जेब्रा. राइट. तो यहाँ पे नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है. समटाइम एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक होता है एग्जाम में, तो बी केयरफुल अबाउट दैट. अदरवाइज मैट्रिक्स इज वेरी इजी टॉपिक. एकदम बहुत इजी लगेगा. दैट्स व्हाई फर्स्ट टॉपिक आई हैव स्टार्टेड मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा. Yes sir. ओके. अब हम लोग 3A - C निकालेंगे. सो टेक स्क्रीनशॉट ले लो. Sir, done. ओके. आ जाओ थर्ड. सो वी हैव टू फाइंड 3A - C. सो यहाँ पे कितना हो गया 3A. A कितना है 2 4 3 2. C कितना -2 5 3 4. हमें बॉड मास फॉलो करना है. पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे. Yes sir. राइट. सो 3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रूल तो हमें पता है,
स्केलर का साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑल एलिमेंट का साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, यस सर। 4 थी जाए कितना होगा 12, 3 थी जाए कितना होगा 9, 3 टू जाए कितना होगा 6। So step wise you will do 3 4 अब माइनस करो 6 माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा 8, 8 12 माइनस 5 कितना होगा 7 7, 9 माइनस 3 कितना होगा 6, 6 6 माइनस 4 कितना होगा 2 2। तो ए हो गया 3a माइनस 6। सो अंडरस्टूड। यस सर। अब आ जाओ a इंटू बी। नाउ फोर्थ, अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 3 2 मल्टीप्लाई 1 3 -2 5। तो यहां पे देखो 2 क्रॉस 2 ए बी 2 क्रॉस 2, तो इसका कॉलम नंबर इसका रो नंबर बोथ आर इक्वल। अगर ऐसा होता है तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। नाउ हाउ वी कैन मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो कितना होगा 2 इंटू सर 1 2 2 प्लस माइनस 4 इंटू -2 8 -8 पहले लिख के करना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना होगा 2 6 प्लस 4 इंटू 5 20 20। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना होगा 3 प्लस 2 इंटू -2 कितना होगा -4 -4 ब्रैकेट में रखोगे। सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना होगा 9 9 प्लस 10 10। आप कैलकुलेट कर लो 2 -8 कितना हो जाएगा 2 -6। -6 6 प्लस 20 कितना होगा 26 26। 3 -4 कितना होगा -1 और 9 प्लस 10 कितना हो गया 19 19। राइट, यस सर। ओके, टेक स्क्रीनशॉट। यस सर ठीक है। ओके, अब आ जाओ लास्ट बी इंटू ए। नाउ फिफ्थ b into a 1 3 -2 5 and a 2 4 3 2। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 2 प्लस 2 9। 9 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4 प्लस 4 + 6 6। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा -4 -4 प्लस + 15 15। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा -8 -8 + प्लस 10 10। तो देखो रिजल्ट कितना है 9 प्लस 2 कितना हो गया 11। 11 6 प्लस 4 कितना हुआ 10 10 और 15 - 4 कितना होगा 11 11 और 10 - 8 कितना होगा 2 2। Once check the answer। यस सर करेक्ट। Correct। Now यस question number 2, one I am doing 1 2 3 4 में से कौन सा करें बताओ। अदर 3 you यस सर। answer 2 कौन सा करे बताओ। ट्रिगोनोमेट्री वाला करे। नो सर ट्रिग्नोमेट्री वाला मैं करूंगा। अच्छा, सेकंड वाला करे। यस सर। चलो सेकंड वाला करते हैं। इट इज एडिशन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यस सर, इसके साथ हमें प्लस करना है किसको, 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, ठीक है। यस सर, अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करोगे कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ रहा है फर्स्ट एलिमेंट, फिर बी यस स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर, देन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट कितना हो गया, ए प्लस बी होल ए स्क्वायर, प्लस बी होल स्क्वायर, फिर बी प्लस सी होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, देन ए माइनस सी होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। Okay, so this much we can't do anything. यस सर, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 6 क्वेश्चन है, which one I'll do, tell सर सर, me. सर कैन यू रिपीट? क्वेश्चन नंबर 3 कौन से क्वेश्चन यस करें, सर, आंसर 3। So total 6 questions are given. Anyone? कौन सा 5, कौन सा 5 वाला, यस सर, चलो 5 वाला, 5 वाला 2 1 3 2 minus 1 1 and multiply with 1 0 1 minus 1 2 1, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का साथ, अब देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बताओ, 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2, 2, और सेकेंड वाले का कितना है 2 क्रॉस 3, 3। इसका मतलब ये दोनों तो सेम है, इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। पर ध्यान में रखो जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस, लेट अस सी आता कि नहीं। अच्छा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो 2 माइनस 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कितना होगा 0 प्लस 2, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना होगा 2 2 प्लस प्लस 1। 1, अब देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा 3 माइनस 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना होगा 0 प्लस 4, देन सेकेंड रो 3 थर्ड प्लस कॉलम कितना होगा 3 3 प्लस प्लस 2, 2। अच्छा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा माइनस 1 माइनस 1, फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम कितना आएगा 0 प्लस 2, देन थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना होगा माइनस 1 प्लस 1, प्लस 1। अब देखो फाइनल रिजल्ट कितना होगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना हुआ 1 4 5 minus 2 2 and here 0, check answer। yes sir, correct, correct, okay। yes sir, now question number 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या करने बोला है, a is given, b is given, c is given, then compute a plus b and b minus c, also verify that a plus b minus c equals to a plus b minus c। चलो कैलकुलेट करते, आंसर 4। सबसे पहले बोला है a प्लस बी फाइंड करो, तो
ए प्लस बी। ए मैट्रिक्स को लिखते हैं, कितना है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। ओके, प्लस बी कितना हो जाएगा 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। राइट, अब इसको Yes, sir. ऐड करो, देखो कितना आता है, डायरेक्ट बताओ। 4, 1 + 3 4, 4 2 -1 1 1, -3 -2 -1. -3 + 2 ना, कितना हुआ Yes, sir. -1। 5 + 4, 9, 5 + 4 9 9, 0 + 2 2 2, 2 + 5 7, 7, फिर 1 + 2 3, 3 -1 + 0 -1 -1, 1 + 3 4। 4. चलो हमें a + b मिल गया। फिर कंप्यूट करने बोला है b - c। आप कंप्यूट करते हैं b - c, तो b को लिखते हैं 3 -1 2 4 2 5 फिर 2 0 3। इससे हम माइनस करेंगे c को। c क्या दे रखा है 4 1 2 0 3 2 फिर 1 -2 3। अच्छा, अब माइनस करो, डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। 3 - 4 कितना होगा Oh, -1 -1, -1 कितना होगा -2 -2, 2 - 2 कितना होगा 0 0, 4 - 0 कितना होगा 4, 4 2 - 3 कितना होगा -1 -1, 5 - 2 कितना होगा 3 3, देन 2 - 1 कितना होगा 1, 1 0 -2 कितना होगा 2 +2, 3 - 3 0। 0. चलो ये आ गया b - c। अब हमें शो करना है, वेरीफाई करना है a + b - c क्या होना चाहिए, a + b - c। चलो देखते हैं। ओके, सो विल कंप्यूट LHS फर्स्ट, क्योंकि वेरीफाई करना है। LHS इक्वल्स टू a + b - c। तो a कितना है 1 2 -3, फिर कितना है 5 0 2 1 -1 1। और b - c ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, Yes, sir. तो उसको लिखेंगे कितना -1 -2 0। फिर क्या है 4 -1 3 1 2 0। ठीक है, अब इसको ऐड करो, देखो क्या आता है, कितना होगा 0, फिर 0, 2 - 2 0 -3 + 0 -3 5 + 4 कितना होगा 9, 9, फिर कितना होगा -1 -1, 5 2 1 1। ये हो गया ए लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू, राइट। Yes, sir. अब राइट हैंड साइड निकालो RHS। RHS इक्वल्स टू क्या होगा a + b -c। तो हमें a + b क्या मिला है 4 1 -1 9 2 7 और कितना है 3 -1 4। इससे -c किया। अच्छा, c क्या था
4 1 2 और 0 3 और क्या है 2 है ना, यस सर। एंड 1 माइनस 2 1 माइनस 2 3। चलो माइनस करके देखते हैं दोनों इक्वल आता कि नहीं। अच्छा 4 माइनस 4 क्या हो गया 0, 1 माइनस 1 कितना हुआ 0 माइनस 1 माइनस 2 कितना आएगा -3। -3 चलो फर्स्ट तो सेम है। 9 माइनस 0 कितना हुआ 9, फिर 2 माइनस 3 कितना आया -1। 7 माइनस 2 कितना होगा +5 3 माइनस 1 कितना होगा 2, -1 +2 +2 कितना होगा 1, 1 4 माइनस 3 कितना होगा 1। 1 So we can say that LHS equals to RHS. So verify हो गया। यस सर। So understood? यस सर। Very good. So shall I change? यस सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में करना। यस सर। ओके अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते। नाउ आंसर 6, simplify cos theta, then cos theta sin theta minus sin theta cos theta plus sin theta sin theta minus cos theta sin theta। नाउ मल्टीप्लाई cos थीटा, सबका साथ मल्टीप्लाई होगा यस सर। cos स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा और क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, और sin थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा। sin थीटा cos थीटा, यस सर। यहाँ पे क्या होगा sin थीटा cos थीटा और क्या होगा sin स्क्वायर थीटा, right? Now यस सर। if you add then sin square theta plus cos square theta plus cos square theta, ये दोनों ऑपोजिट साइन है 0 आया, ये दोनों ऑपोजिट साइन है 0 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा sin square theta cos थीटा प्लस cos square theta। sin square theta प्लस cos square theta क्या होता है 1 होता है, 1 तो क्या आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, बट वो लिख यस सर। लेता हूं, इसको यहाँ पे छोड़ दो। So take a screenshot. यस सर डन। ओके अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे जो हम लोग करेंगे, ठीक है, यहाँ से देखो 12 तक है, 12 13, ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16 17 18 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 17 18। एंड देन इसका जो मैट्रिक्स का जो वर्ड प्रॉब्लम, सो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखा है, बट हम लोग और कुछ क्वेश्चंस हम लोग बाहर से भी करेंगे, ठीक है, यस तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग अदर बुक से भी करेंगे, राइट? अब यहाँ यस पे सर। क्वेश्चन नंबर 7, इसको कैसे करेंगे देखो। अब ये तो लीनियर इक्वेशन है, यस सर। जैसे हम लोग क्लास 10th में किया था लीनियर इक्वेशन का सॉल्व, ठीक है, इसको उसी तरीके से सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड में। x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या दे रखा है 7
0 2 5, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 0 0 3। अब अगर हम x एंड y को सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या हुआ, जो अगर ऐड कर दे दोनों को, ठीक है, इसको अगर हम इक्वेशन 1 दे दें और इसको अगर हम इक्वेशन 2 दे देते, सो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 2, अगर ये दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो क्या होगा, y कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, मतलब 7 0 2 5, इसको हम ऐड करेंगे किससे, 3 0 0 3, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, 2x इक्वल्स टू 10 कितना हो गया, 10 0 0 2 एंड 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 8, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 2 को अगर इधर लेके आओगे डिनोमिनेटर में मत देना, सुनो, दिस इज ए फिगर, एक्चुअली yes मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज ए वन काइंड ऑफ फिगर, इट इज नॉट ए नंबर, इट हैज नो वैल्यू, इसका वैल्यू नहीं होता है रियल नंबर जैसा। तो जब हम 2 को इधर लेके आएंगे तो a यहाँ पे दोगे 1/2, राइट, yes sir 10 0 2 8, फिर हम 1/2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई 1/2, सो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 0 0 1 4 4, ये हो गया x का वैल्यू, राइट। सो राइट डाउन दिस। अब हम yes sir done अगर हम y का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ऐसा करो, तो किसी इक्वेशन, भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे, हाँ, या तो माइनस कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं, बेटर है। अगर हम ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा, x x कैंसिल हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू कितना आएगा, 7 7 0 0 2 5 2 5 माइनस minus 3 0 0 3 3 0 0 3, या फिर x का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देने से भी होता। सो 2y, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो गया, 7 माइनस 3 4 0 2 5 माइनस 3, 2 सो y इक्वल्स टू, अगर 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 2 0 1 1 1। 1 सो इट इज लाइक ए लीनियर इक्वेशन, जैसे हम लोग क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन का यूज किया है, इन द सेम वे वी कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ x एंड y, yes sir ओके yes sir ओके। सो टेक स्क्रीनशॉट, yes sir done 7 का सेकेंड you will do as a homework, okay sir okay, 8 also you will do homework, yes sir and 9 also you will do homework. Question number 10 today we'll do up to question number 10, okay sir and remaining questions you'll do in homework. And for other students who don't have my contact number, I'm writing here 9394936634. You can contact with me for any kind of doubts. So answer 10. Answer 10. Solve the equation for x, y, z and t. तो यहाँ पे जो हम लोग 3.1 का कॉन्सेप्ट यूज किया था उसी को यूज करना है। If two matrices are equal, then their corresponding elements will be equal. ठीक है? yes sir अच्छा, यहाँ पे एडिशन है, एडिशन कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स मिलेगा, राइट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स मिलेगा, फिर कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू क्या है, x z y
t प्लस 3 1 माइनस 1 0 2, ठीक है, इक्वल्स टू 3 3 5 4 6। अब सबसे पहले ना इसको सॉल्व कर लो। तो बॉडमास अगर हम फॉलो करते पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे yes sir. तो कितना होगा 2x, ये कितना होगा 2z 2y एंड 2t, प्लस अगर 3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 3 माइनस 3, यहाँ पे 0 यहाँ पे 6, 6 और इस 3 को भी मल्टीप्लाई कर लो कितना होगा 9 और 15 15 12 12 18 18। गुड। नाउ एडिशन करो, ये दोनों को ऐड करोगे कितना होगा 2x प्लस 3, फिर 2z माइनस 3 and here 2y and 2t plus 6। अब यहां पे कितना हो गया 9 15 12 18। नाउ कंपेयर बोथ साइड, ठीक है। हम जानते हैं दो मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स इफ इक्वल देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी इक्वल। तो हम क्या लिख yes सकते हैं यहाँ पे 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 9 9, ठीक है। तो इससे x को सॉल्व कर ले तो कितना होगा 2x इक्वल्स टू 6, x कितना हो गया 3। सो x का वैल्यू वी गॉट। अच्छा, अब y का वैल्यू के लिए क्या करना है 2y इक्वल्स टू 12, yes sir. तो y इक्वल्स टू कितना आएगा 6। अच्छा, z के लिए क्या करोगे 2z माइनस Z minus 3 is इक्वल्स equal टू to 15। 15 नाउ 3 ब्रिंग दिस साइड, कितना होगा 2z इक्वल्स टू 18। 18 अब z इक्वल्स टू कितना आ गया 9। 9 अब लास्ट कौन रह गया t, t के लिए क्या करोगे 2t प्लस 6 इक्वल्स टू 18। 6 को इधर लाओ कितना होगा 2t इक्वल्स टू 12 एंड t इक्वल्स टू कितना हो गया 6। चेक आंसर 6 वंस। तो x इक्वल्स टू 3, मेक बॉक्स, y इक्वल्स टू 6, z इक्वल्स टू 9 and t equals to yes sir, correct, okay। yes sir, So today we did up to 10, question number 10, okay। yes sir, So in next class we'll do remaining questions, ठीक है। yes sir. और होमवर्क कंप्लीट करके क्या हुआ जो सेंड करोगे। तो ओके फाइन।